सर क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। On 1st January 2003, a company become committed to plan to sell a manufacturing facility and has already found a potential buyer. The company does not intend to discontinue the operation currently carried out in a facility. At 31 December 2016, there is a backlog of uncompleted customer orders. The company will not be able to transfer the facility to the buyer until after it ceases to operate the facility and has eliminated the backlog of uncompleted customer orders. This is not expected to occur until spring 2004. How should the manufacturing facility be accounted for as 31 December 2016? देखो क्या कह रहा है। 1 दिसंबर 2016 पे हमने कमिटेड प्लान बना लिया कि हम एक एसेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बेच देंगे। हमने बायर भी ढूंढ लिया, लेकिन हम इसको फौरन नहीं बेच सकेंगे। रीजन बीइंग कि हमारे कुछ पेंडिंग बैकलॉग ऑर्डर्स पड़े थे, और जब तक ये बैकलॉग ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होंगे हम इस एसेट को बेच नहीं सकेंगे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्प्रिंग 2004 में, यानी कि 2004 के शुरू के 4-5 महीने के अंदर ही हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और हम इसको बेच सकेंगे। मुझे बताएं क्या हम इसको 1 दिसंबर या ईयर एंड पे IFRS 5 में क्लासिफाई कर देंगे या नहीं? सर इवन दो कि हमारा कमिटेड प्लान है, इवन दो कि हमने पोटेंशियल बायर ढूंढ लिया है, लेकिन स्टिल एसेट अवेलेबल फॉर सेल इन इमीडिएट कंडीशन नहीं है, तो चूंकि हमारी कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, हम इसको IFRS 5 में क्लासिफाई नहीं कर रहे होंगे। आपके इसी एंडआउट में अगर आप सबसे लास्ट पेज पे आओगे तो मैं इसके आंसर भी ड्राफ्ट किए हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रीड करता हूं। कहता है the facility will not be transferred until the backlog of order is completed. This demonstrates that the facility is not available for immediate sale in its present condition. The facility cannot be classified as held for sale at 31 December 2016. It must be treated in the same manner as other item of property, plant and equipment, and it should continue to depreciate and it should not be separately disclosed. However, if the company seeks to sell the manufacturing facility including the backlog of the uncompleted orders, its availability for immediate sales may be assumed. पहले पैरा में तो क्या बात कर रहा है, आई गेस कि आप लोगों को समझ आती है, लेकिन दूसरे पैरा में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप एक मशीनरी को बेचने का इरादा कर रहे थे, उस मशीनरी में कुछ बैकलॉग पेंडिंग ऑर्डर्स थे। अगर आपने इरादा ये किया है कि आप ये पेंडिंग ऑर्डर भी सेल कर दोगे, यानी जिस कस्टमर को ये मशीनरी बेच रहे हो उसी को कहते हो कि भाई ये पेंडिंग ऑर्डर इस मशीनरी के आप पूरे कर लेना, तो इसका मतलब है कि पेंडिंग ऑर्डर होने के बावजूद भी आपकी एसेट इमीडिएट कंडीशन में आ गया फॉर इमीडिएट सेल, अब ये IFRS 5 में क्लासिफाई हो सकता है। ऐसी चीज है कि अगर हम आईक्यूब के एग्जाम मतलब आईक्यूब के सिनेरियो में हम शायद पिक ना भी कर सके, ये तो चूंकि केस स्टडी डिस्कस की गई है तो उसमें उन्होंने हर पॉसिबल एंगल से आपको चीजों को कवर किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। On 20th October 2003, the director of the parent company made a public announcement of plan to close the steel work. The closure means that group will no longer carry out this type of operation, which until recently has represented about 10% of its total revenue. The work will be gradually shut down over a period of several months with complete closure expected in July 2004. At 31 December 2016, output had significantly reduced with complete closure expected in At 31 December 2016, output has been significantly reduced and some redundancies had already been taken place. The cash flow revenue relating to the steel work can be clearly distinguished from those of the subsidiaries' other operation. How should the closure be treated in the financial statement for the year ended 31 December 2016? जी सर, एक पेरेंट कंपनी है, 20 अक्टूबर पे इसने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम एक सब्सिडरी का कोई ऑपरेशन बंद करने जा रहे हैं, और ये सब्सिडी का ये ऑपरेशन हमारा 10% रेवेन्यू इकट्ठा करता है। हम वक्त के साथ साथ ये काम बंद करेंगे और इस काम को बंद करने में हमें तकरीबन 8-9 महीने लग जाएंगे, 20 अक्टूबर से जुलाई 2004 तक। 31 दिसंबर तक हमने काम भी कम कर दिया है, कुछ वर्कर्स को भी फारिग कर दिया है। इस ऑपरेशन के रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नंबर्स भी हमारे पास सेपरेटली आइडेंटिफाइड है। किस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे? सर इसमें बहुत सारे कंडीशंस के वाले से तो बात ही नहीं की कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट का, बायर को लोकेट करने का, रीजनेबल प्राइस पे मार्केट करने का,
और अभी भी आप ये एसेट यूज कर रहे हो, आपने 100% इमीडिएट सेल में ये एसेट अवेलेबल नहीं हुआ है, आप काम कम कर दिया लेकिन काम फिर भी चल रहा है इसका, तो इस वजह से IFRS 5 में क्लासिफाई नहीं होना चाहिए। इसका आंसर भी रीड करते हैं। बीन द स्टील वर्क इज बिकॉज द स्टील वर्क इज बीन क्लोज, अभी बंद होना है, रादर देन सोल्ड, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। हम बिजनेस बंद करने का इरादा कर रहे हैं, बेचने का इरादा नहीं कर रहे हैं। हम बिजनेस बंद करने का इरादा कर रहे हैं, बेचने का इरादा नहीं कर रहे, तो इसको IFRS 5 का हेल्ड फॉर सेल तो क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। इन एडिशन द स्टील वर्क इज नॉट अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, और अभी ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी नहीं है क्योंकि हमने बंद करने का इरादा किया, अभी बंद किया नहीं है। Although 31 December 2016 the group was firmly committed to the closure, this has not yet taken place and therefore the steelwork must be included in continuing operation. Information about planned closure could be disclosed in the notes to the financial statement if this information is material for the user of the financial statement. आप इसको हेल्ड फॉर सेल तो क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप बेचने का इरादा नहीं कर रहे, आप तो बंद करने का इरादा कर रहे हो। आप इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप बंद करने का इरादा कर रहे हो, अभी बंद किया नहीं है, तो ये आपके नॉर्मल कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आ रहा होगा। हाँ, अगर आपका बेचने का इरादा है और वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है तो हम अपने यूजर्स को डिस्क्लोजर्स में ये बात जरूर बता देंगे कि हम इस चीज को बंद करने का इरादा करते हैं। दो सवाल लीड कर लेते हैं ना, मतलब जवाब के साथ। चलिए एक सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पर है। On 31 December 2004, entity R had a property that it offered for sale for 5 million. The market for this type of property has deteriorated and at 31 December 2004, a buyer has not been found. Management does not wish to reduce the price because it hopes that the market will improve. Shortly after the year end, the entity received an offer for 4 million and the property was eventually sold for rupees 3.5 million during Feb 2005. Before the financial statement for the year ended 31 December 2004 were authorized for issue, how should the property be accounted? देखो क्या कह रहा है, कहता है ईयर एंड पे हमने एक प्रॉपर्टी को बेचने का इरादा किया 5 मिलियन में। कह रहा है अभी प्रॉपर्टी मार्केट खराब चल रही है तो 5 मिलियन तो अभी नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले वक्तों में 5 मिलियन मिल जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि 1-2 महीने के बाद हमें एक बायर मिला 4 मिलियन का और हमने उससे डील फाइनलाइज कर ली 3.5 मिलियन में। और जब हमने फरवरी 2005 में 3.5 मिलियन पे डील फाइनलाइज की ना, तब हमारे 31 दिसंबर 2004 के अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए थे। अब 31 दिसंबर 2004 के अकाउंट्स में क्या ये प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सर हमारे पास जो IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया है, the asset must be available for sale in its present condition and the sale is highly probable. Sale is highly probable में कि आपकी ये इंटेंशन हो कि आप इसे रीजनेबल प्राइस यानी कि जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उस पर बेचने का इरादा रखते हैं। हम ये रेट पे ये इरादा कर रहे हैं कि हम इसको 5 मिलियन का बेचेंगे, आने वाले वक्तों में मार्केट इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर पे मार्केट इंप्रूवमेंट 5 मिलियन की वैल्यू जनरेट नहीं कर सकती। तो 31 दिसंबर पे IFRS 5 के सारे क्राइटेरिया मीट नहीं होते, हम इसको IFRS 5 में क्लासिफाई नहीं कर रहे होंगे। और क्या कह रहे थे आप? ये जो 3.5 मिलियन में इसको बेचा है और अकाउंट्स क्लोज नहीं हो रहे, अब सुनिएगा, 31 दिसंबर 2004 पे आप इरादा कर रहे थे कि आप एक प्रॉपर्टी को बेचोगे 5 मिलियन में। अभी मार्केट अच्छी नहीं है, अभी 5 मिलियन नहीं मिल सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मार्केट बढ़ जाएगी, हम इसको बेच देंगे। और 2 महीने के अंदर सेल एक्चुअली मटेरियलाइज भी हो गई। सर 31 दिसंबर 2004 के जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो 31 दिसंबर 2004 पे हम उसे रीजनेबल प्राइस पे सेल करने के लिए एग्री नहीं थे, तो IFRS 5 में क्लासिफाई नहीं होगा। और अगर 31 दिसंबर 2004 पे इसकी रिकवरेबल अमाउंट या फेयर वैल्यू कम है तो इस पे बिल्कुल रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 16 या IAS 40 के हिसाब से फेयर वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड अगर एक एसेट लोअर वैल्यू पे सेल हो रहा है तो बिल्कुल ये एक एडजस्टिंग इवेंट होता है कि हमारा एसेट ईयर एंड पे ही इम्पेयर या रिवैल्यू होने की नौबत थी। इसका भी सॉल्यूशन रीड कर लेते हैं। The property cannot be classified as held for sale
A non-current asset qualified as held for sale if it is available for sale in its present condition and actively marketed for sale at a price that is reasonable to its current fair value. The property had not been sold at the year end, although it had been on the market for some time. It appears the reason for this was that the management were asking too high price. Therefore, the price is not reasonable in relation to its current market value. आसान आसान सी बात है ना. अब 3 सवाल लीड कर लिए तो एक और सवाल लीड कर लेते. बस छोटा सा सवाल देखिए कितना छोटा सा. क्वेश्चन नंबर 4. At 31 December 2004, entity R had a plant with a carrying value of 2.5 million. The entity has ceased to use the plant but will still maintaining it in working condition so that it can be used if needed. Entity R sold the plant on 15 May 2004. How should the plant be accounted for at 31 December 2004? हमने एक प्लांट जिसकी कैरिंग वैल्यू थी 2.45 मिलियन, उसके यूजेज को रोक दिया. हम इसको उसकी साफ सफाई करवा रहे हैं, उसकी ट्यूनिंग, उसकी ऑयलिंग वगैरह करवा रहे हैं, ये सोच के हो सकता है वापस इस्तेमाल कर लें. लेकिन 15 मई 2005 में हमने इसको बेच दिया. 31 दिसंबर 2004 के अकाउंट्स में IFRS 5 में आना चाहिए. सर यहाँ पे पहले तो ये कि हम बेचने का इरादा ही नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ इसका यूज रोक दिया था हमने, फिर आगे जाके बेच दिया तो बेच दिया, लेकिन ईयर एंड पे IFRS 5 पे नहीं आना चाहिए. बस लास्ट इसका सोल्यूशन भी रीड कर लेता हूं. कहता था plant cannot be classified as held for sale. At the year end, management had not made a firm commitment to sell the plant. Even though the plant was sold just after the year end, IFRS 5 prohibit classification of current asset if the criteria are met after the year end, after the reporting date and before the financial statement was signed. अगर किसी एसेट के ऊपर पांचों क्राइटेरिया ईयर एंड के बाद मीट हो रहे हैं तो वो ईयर एंड पे IFRS 5 के अंदर प्रेजेंट नहीं हो रहा होगा. हमने कोई बहुत ज्यादा तो एसेट कवरेज वगैरह नहीं किया, सिर्फ एक डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन किए कि कब एक एसेट IFRS 5 में क्लासिफाई होगा या नहीं. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी मेजरमेंट और इम्पेयरमेंट वगैरह के रूल्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे और फिर इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वगैरह को कवर कर रहे होंगे. आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.